Hello everyone, welcome to Jigyasa. I'm Davashmita. So, in this video, we are going to learn about the Human Genome Project. Okay, before we are going to start about the Human Genome Project, we have already discussed about the what is Genome Project and what is the RISE Genome Project. In the previous video, we have already discussed about the RISE Genome Project. Okay, so first things, the human genome projects or anything that is the genome project. In the previous class also we have discussed about the genome project. So basically genome project क्या है ना, कोई भी डीएनए का सीक्वेंस या फिर कोई भी जीनोम का सीक्वेंस हम लोग लेकर के क्या करते हैं ना, उसी से उसी का जो जेनेटिक बेस पेयर्स रहता है उससे एनकोड करके हम लोग क्या करें, प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और उसको मॉडिफाई करके हम लोग एक न्यू वैरायटी और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं उसका मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। वो था क्या, हम लोग का जीनोम प्रोजेक्ट। उसी बेसिस पे हम लोग क्या किए थे ना, राइस जीनोम प्रोजेक्ट का भी डेवलपमेंट किए थे। राइस जीनोम प्रोजेक्ट किस लिए यूज होता है, बेसिकली ना इम्प्रूव वेराइटी ऑफ सीड्स लाइक कि वेरियस सीरियल्स पल्सेस, इस सब में क्या होता है ना, यूज होता है। डिजीज रेजिस्टिविटी कैपेसिटी, एल्डिंग कैपेसिटी उसमें इंक्रीज करने के लिए और टॉलरेट अडेप्टेबिलिटी उसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या होता है ना, राइस जीनोम प्रोजेक्ट यूज होता था, ठीक है। इतना हम लोग कवर कर चुके थे। तो इस क्लास में हम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को क्या करना है, नॉलेज गैदर करना है या फिर उसके बारे में जानना है। तो बेसिकली ये एक्चुअली में क्या है, पार्ट ए है या फिर पार्ट 1 है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। सो एक्चुअली हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या देखने वाले हैं या फिर क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। So first things that is what is genome project, what is human genome project. We are going to cover about human genome project. Then what is the goals of human genome project. Then comes to the methodology, what's its methodology, क्या क्या होने वाला है, किस प्रोसेस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। Then comes to silent feature of the human genome. Then finally its application of the human genome. So these points are going to be covered in this particular video, or actually हम लोग in this particular video we are going to cover only the human genome project and the goals of the human genome project, okay. And in the part 2 we are going to learn about the what are the different kinds of the methodology used in case of the human genome project, and what are the silent feature of human genome and what's its application, okay. So let's start about the human genome project, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या होता है ना, वेन एवर वी सी अबाउट एनी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन या फिर एनी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निकल, so there is an idea about the what is genome project actually, human genome project actually, because each and every single person have a different or unique identification, because in our fingerprint also, because these are specially designed or specially designed per individuals, okay। so सब किसी का फिंगरप्रिंट क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है, ठीक है। so first things that it is a curious fact that the each human individuals has a separate identity which differentiated him from others, and this identity is due to प्रेजेंस ऑफ ही स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप। सो हम लोग का जो जेनेटिक स्पेसिफिकेशन हो रहा है या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है हम लोग का बॉडी में, इवन के डिज़ाइंड हुआ है, वो क्या है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और यूनिकली डिज़ाइंड हुआ है क्योंकि हर एक इंसान जो होता है या फिर एक दूसरे के जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है।
So that is why the two individual person are not similar except the monozygote twins. If we are consider about the monozygote twins, then there is an exception. Otherwise any individuals are uh, different from each other. ठीक है. And the difference lie in their genetic makeup. ये सारा difference कहाँ पे आ जाता है ना, डायरेक्ट उसका genetic makeup. So genetically changes हो जाता है, that's why they are different from one others. So if we trace the difference between the two individuals at molecular level, the difference lie in the nucleotide sequence of their DNA. सो इसमें क्या बोला है ना, अगर हम लोग को कोई भी इंडिविजुअल को हम लोग देखते हैं तो सपोज सपोज ए इज़ अन इंडिविजुअल एंड बी इज़ अन इंडिविजुअल, अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे उसका मोलिकुलर लेवल में, तो क्या होगा ना, हम लोग क्या देखेंगे उसका ना जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसी में क्या होगा, हम लोग को डिफरेंस मिलेगा. दैट्स वाई दे कैन, वो सारा चीज़ कहाँ पे दिख रहा है ना, उसका मॉर्फोलॉजिकल और उसका आउटर अपीयरेंस में भी वो सारा चीज़ जेनेटिक जो चेंजेस दिख रहा है. ठीक है. So this has led the scientists to prepare a detailed map of the human genome, and then the field of genomics came to into the existence. सो साइंटिस्ट लोग इसी को बेस करके क्या किए थे ना, ह्यूमन का जीनोम का डेवलपमेंट किए थे, और जो जीनोमिक सीक्वेंसेस आया था इसी से ही डिराइव्ड होकर के आया था. सो द फर्स्ट द टर्म जीनोमिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जीनोम या फिर जीनोमिक्स, ठीक है कि नहीं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिर जीनोमिक्स एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केसेस. एंड द टर्म जीनोमिक्स वाज कॉइन्ड बाय थॉमस रोड्रिक. साइंटिस्ट कौन थे ना, जो कि टर्म किए थे किसको ना, जीनोमिक्स को टर्म किए थे कौन ना, थॉमस रोड्रिक in 1986 to describe the scientific discipline of the mapping, sequencing and the analyzing the genome. तो किस लिए जीनोमिक का एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ था या फिर डिस्क्राइब हुआ था ना, साइंटिफिक एक्चुअली जीनोम का सीक्वेंस जो होता है उसको डेवलप करने के लिए, मैपिंग सीक्वेंस करने के लिए, और क्या है ना, एनालाइज द जीनोम, एनालाइजिंग जीनोम. जीनोम को हम लोग क्या कहते हैं, तीन चीज़ करें. पहले क्या होगा ना, मैपिंग कर सकते हैं उसमें से, उसका सीक्वेंस का हम लोग को पता चल पाएगा और उसको हम लोग एनालाइज कर पाएंगे. उसके लिए क्या किए थे ना, थॉमस रोड्रिक इन 1986 में क्या किए थे ना, टर्म जीनोमिक्स को कॉइन किए थे. ठीक है. द टर्म जीनोम वाज कॉइन्ड बाय एच विंकलर, और द टर्म जो जीनोम आया था उसको कौन किए थे ना, एच विंकलर, कब ना 1920 में. टू कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोमल एंड द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए वायरस. सो जीनोम एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम और द सेट ऑफ जीन्स और जीनोम और डीएनए का सीक्वेंस. ठीक है. द फील्ड ऑफ, यहाँ पे और एक चीज़ आ जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग कैसे करते हैं ना, थ्रू द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि हम लोग तो ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली बायोलॉजिकल प्लस इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है. दोनों चीज़ जब कंबाइन हो गया है तब उसको हम लोग उस पर्टिकुलर जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स. द फील्ड ऑफ जीनोमिक्स इज बेस्ड मेनली अपॉन ए न्यू एरिया इन द बायोलॉजिकल बायो इन्फॉर्मेटिक्स. और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है ना, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस which concerned with the management and the analysis of the biological information stored in the databases. So बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है, ये एक्चुअली मैनेजमेंट प्लस जब हम लोग एनालिटिकल कोई भी चीज़ को करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो उसका जो डेटाबेसेस होता है उसको स्टोर करके रखता है और उसको मॉडिफाइड करने में हेल्प करता है. ठीक है. जिसके थ्रू में हम लोग ये सारा चीज़ मैपिंग, सीक्वेंसिंग, एनालाइजिंग, ये सारा चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं. ठीक है. ये हो गया क्या नाम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स. दिस ब्रांच डेवलप आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, इन introduction of the automated protein and the DNA sequencing technique, and use of the computers to store enormous data which could be easily accessed remotely.
So actually it's a combination, because whenever we study about the genetic engineering techniques, ये किसके बाद हुआ, डेवलपमेंट हुआ है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के बाद, और क्या है ना, जो भी ऑटोमेटेड हम लोग का प्रोटीन का सीक्वेंस का जो जब डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है कि नहीं, और डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक जब इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड उसमें क्या होना, जब कंप्यूटर का भी यूज हुआ था किसमें ना, हम लोग का बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, ठीक है, किस लिए ना, हम लोग को जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हम लोग को जो डेटा मिल रहा है, उसको तो फिर स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, उसको मॉडिफाइड करना है बाद में। तो ये सारा चीज़ कंबाइन हो गया, उसके बाद ये हो गया टोटली तुम आप लोग का क्या ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। So by the end of the 1980s, it became possible to isolate and clone any piece of the DNA in order to determine the DNA sequences. After क्या हुआ ना, 1980 के बाद और 1980 का जो एंड ऑफ में क्या हुआ ना, पॉसिबल हो गया कि कोई भी डीएनए का सीक्वेंस को हम लोग को क्या कर सकते हैं ना, हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्लोनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और उसका जीन डीएनए का सीक्वेंस को हम लोग डिटरमाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो उतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, इसीलिए क्या हो रहा था, उतना एडवांस लेवल में भी नहीं हो पा रहा था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कोई किसी का भी डीएनए, आइदर बैक्टीरिया, वायरस, किसी का भी डीएनए, ठीक है कि नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, एनिमल हो, प्लांट हो, किसी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसका डीएनए का सीक्वेंस को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का ये में प्रोसेसिंग में क्लोनिंग भी कर सकते हैं, और उसमें से क्या है ना, मल्टीपल कॉपीज भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है ना, ह्यूमन का जीनोम भी development हुआ। This has led the initiation of an ambitious project of the sequencing human genome, which was launched as the Human Genome Project। So ऐसे ही क्या किए थे ना, हम लोग का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ था, ठीक है, कि कैसे ह्यूमन का जीनोम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आइसोलेट कर सकते हैं, और उसको क्लोनिंग कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और उसको डिटरमाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, एक्चुअली द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ए comprehensive international effort that started in the year of 1990 by molecular biologists to map the entire human genome by the determine the complete nucleotide sequence of the DNA of the each chromosomes, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है ना, वी नो दैट द ह्यूमन हैव होमो सैपियंस एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वो 23 pairs of the chromosomes, which is 46, ठीक है कि नहीं, इसका डिप्लॉयड नंबर इज 46। आउट ऑफ 46 कितना होता है ना, 22 जो होता है हम लोग का क्या, ऑटोजम्स होता है, एंड 1 पेयर ऑफ क्या होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हुआ ना, एक्चुअली में ये क्या हुआ 1990 में फर्स्ट स्टार्ट किया गया था, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या होगा ना, ह्यूमन के जीनोम को क्या करते हैं ना, मैपिंग करके उसको क्या कर रहे हैं ना, उसको जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो रहे हैं उसी का पूरा होल सीक्वेंस को साइंटिस्ट लोग क्या करने वाले थे ना, मैपिंग करने वाले थे पूरा होल जीनोम का सीक्वेंस को, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेट 3 बिलियन बेस पेयर्स, कितना कंसिस्ट करता है ना, 3 बिलियन बेस पेयर होता है, ठीक है। हम लोग राइस के वेराइटी में हम लोग देखे थे कितना था उसका, ओनली 400 समथिंग उसका जो मिलियन बेस पेयर था, ठीक है। तो इसीलिए उसमें से क्या हो रहा है, उसका जो जीनम का सीक्वेंस हो रहा था बाकी अदर पल्सेस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो रहा था, वो स्मॉलर था, दैट्स वाई राइस जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग क्या किया था, राइस एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उसको यूज़ किया जा रहा था। तो यहाँ पे भी वही केस है कि ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ कितना ना, 3 बिलियन बेस पेयर्स, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंसिंग सिंगल बेस पेयर रिक्वायर्ड अबाउट द $3, and then the overall expenditure was estimated by approximately $9 billion to complete the project। तो इसमें क्या हो रहा है ना, अगर हम लोग देखते हैं कि एक ही सीक्वेंस को, एक ही सिंगल बेस पेयर को अगर हम लोग उसका सीक्वेंसिंग करते हैं, जीनोम का सीक्वेंसिंग करते हैं, या फिर डीएनए का, उसी डीएनए का मैपिंग करते हैं, तो उसमें क्या कर रहा है ना, $3
ऐसे भी ये होने वाला था। उसका जो कॉस्ट था कितना, $3। अगर ओवरऑल हम लोग करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन उसमें एक्सपेंड होना था, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हुआ ना, बिसाइड द कॉस्टली एफेयर, बिकॉज इट्स टू मच इज रिक्वायर्ड, टू मच कॉस्ट, दैट्स वाई the problem of the storing the sequence was also challenging because इसको only sequencing, उसको suppose कोई भी चीज़ को हम लोग isolate करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका क्लोनिंग करते हैं, उसके बाद उसका डीएनए का क्लोनिंग हो जाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का सीक्वेंसिंग करके देन उसको स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर उसमें अगर प्रॉपर तरीके से उसमें से क्या होगा ना, स्टोर करके नहीं रखने, वो क्या हो सकता है ना, खराब होने का चांसेस रहता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारा उसका इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन का जो जीनोम था उसको स्टोर करने का या फिर उसका जीनोम का सीक्वेंस को उसको स्टोर करने का भी एक चैलेंज था, ठीक है। So this can be understood by the assuming to store the obtained sequence in the typed form in the books only। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं ना, उसका जो डेटा था, उसका जो जीनोम का सीक्वेंस था, उसको ओनली हम लोग बुक्स में ही स्टोर करके रख सकते थे, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो देन यू नीड about the 3,300 books, each having 1,000 pages and each page containing 1,000 letters to store the information of the DNA sequencing from a single human cells। So देखो यहाँ पे कितना सारा चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कोई भी एक ही सिंगल सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस, ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस अगर हम लोग करते हैं तो उसमें कितना होगा ना, इंफॉर्मेशन कितना है, 1,000 लेटर्स स्टोर करके रखे हैं। और एक ही जो सिंगल सीक्वेंस रह रहा है वो क्या है ना, 1,000 पेज तक जा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, 3 बिलियन, हम लोग तो देखे थे ना कि 3 बिलियन बेस पेयर से ह्यूमन का जीनोम का सीक्वेंस, तो उसका अगर हम लोग कर रहे हैं तो सब में क्या होगा ना, 3,300 इतना बुक्स हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो उसका जो इंफॉर्मेशन सब स्टोर करके रखने के लिए। तो ऑफिशियली द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन October 1, 1990 by US Department of Energy and the National Institute of the Health। एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है ना, उसका जो ऑफिशियली जो उसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था ना, 1990 1 अक्टूबर को, किसके थ्रू में ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ, उन्हीं के थ्रू। Soon it was joined by Wellcome Trust UK। By 1993 the project had become an established international effort and joined by the many countries like Japan, France, Germany, China etc। So उसके बाद क्या हुआ ना, यूएस डिपार्टमेंट पहले लॉन्च किया था, उसके बाद यूके गवर्नमेंट उसमें क्या हुआ ना, 1993 वो भी ज्वाइन हो गए और बाकी सब कंट्रीज में कंट्री धीरे धीरे उसमें क्या हुए ना, एफर्ट करने लगे और उसमें ज्वाइन होने लगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या बोल रहे हैं ना, उसका क्या गोल है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल है, किस लिए हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का डेवलप किए हैं, ठीक है। first things that is to determine the sequence of the 3 billion base pair present in the human genome, because हम लोग को पता है कि ह्यूमन के जीनोम कितना है ना, 3 बिलियन बेस पेयर है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टू आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ all the approximately 20,000 to 25,000 genes of in the human DNA। उसके बाद क्या है ना, आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ किसका ना, ह्यूमन डीएनए का, ह्यूमन जीन का जितना भी जीन प्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स का क्या हुआ ना, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका डिटरमाइन, ठीक है, ऑफ द फंक्शन उसका क्या है, वो सारा चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का डेवलप हुआ। फिर उसके बाद क्या बोला है ना, टू आइडेंटिफाई एंड द पॉइंट आउट द स्पेसिफिक जीन्स दैट कॉज द जेनेटिक डिजॉर्डर। बहुत सारे ऐसा क्या हो रहा है ना, जेनेटिक डिजॉर्डर हो रहा है। जेनेटिक डिजॉर्डर कैसे हो रहा है, मे बी कोई जीन में क्या हुआ ना, म्यूटेशन हुआ, किसी में डिलीशन हुआ, किसी में एडिशन हुआ, तो वो क्या कर रहा है ना, जेनेटिक डिजॉर्डर कॉज कर रहा है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई और स्पेसिफिक पॉइंट आउट करने के लिए कौन सा जीन पर्टिकुलरली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने
करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यूज हुआ या फिर डेवलपमेंट हुआ. Then comes to next, that is to store the information obtained from the DNA sequencing in the databases. क्योंकि हम लोग डेटाबेसेस डीएनए का जो सीक्वेंस हो रहा है उसके डेटाबेसेस को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए स्टोर करके उसको जो इंफॉर्मेशन है उस सबको क्या करना है ना, स्टोर करके रखने का. डीएनए सीक्वेंसिंग का जो डेटा है उसको स्टोर करके रखने के लिए हम लोग को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का डेवलप हुआ है. और क्या और क्या है ना, टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर द डेटा एनालिसिस एंड टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज द इंडस्ट्री. बहुत सारा ऐसा है, क्योंकि सपोज कि मेडिसिन के केसेस में बहुत सारा इंडस्ट्रीज के केसेस में भी ये सारा चीज़ यूज हो रहा है. ठीक है. टू एड्रेस द पॉसिबल एथिकल, लीगल एंड द सोशल इश्यूज, दैट इज ELSI, दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. ये ऑल्सो क्या हो रहा है ना, इसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी वो भी अराइज हो रहा है. सो ये क्या है ना, एक मेगा प्रोजेक्ट है. ठीक है. ये जो ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एक मेगा प्रोजेक्ट है. इट वाज कंप्लीटेड इन 2003. ये कब कंप्लीट हुआ था ना, 2003 में. ठीक है. 13 ईयर्स आफ्टर इट्स स्टार्ट, बिकॉज ये पहले कब स्टार्ट हुआ था 1990 में, और कंप्लीट कब हुआ था ना 2003 में. The information gained from the project were most exciting, and some of the information about the effect of the DNA variation among the individuals are being used in the diagnosis and the treatment of the human genetic disorder. बहुत सारे DNA का वेरिएशन हो रहा है, और इंडिविजुअल तो हम लोग को पता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है, और किसके बॉडी में कैसा जेनेटिक चेंजेस हो रहा है उसको मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से जो ह्यूमन का जेनेटिक डिजॉर्डर हो रहा है उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करने में भी ये सारा चीज़ यूज हो रहा है. They have to open the prospect of the solving thousands of the disorder that affect in the human beings. Besides the providing the benefit to human beings, the sequencing is also being tried about the non-human organisms, that is bacteria, yeast, C. elegans, and a free living. C. elegans actually it is a free living non-pathogenic nematodes है, and ड्रोसोफिला हम लोग तो यूज़ करते हैं ड्रोसोफिला अपना लैब में रिसर्च के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, द फ्रूट फ्लाई एंड द प्लांट लाइक राइस, अरबिडोप्सिस, थालियाना, ये सारा चीज़. ठीक है. तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है ना, इसमें भी क्या हो रहा है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है ना, बेनिफिट हो रहा है उसको यूज़ करके भी. ठीक है. हम लोग उसको जो सीक्वेंसिंग है उसका जीनोम का सीक्वेंसिंग है उस प्रोसेस में भी हम लोग क्या किया ना, इज द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म लाइक दीज आर ड्रोसोफिला प्लांट्स और C. elegans, बैक्टीरिया, यीस्ट, उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था क्या है नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेसिक थिंग्स. और इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथोडोलॉजीज यूज्ड इन केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. देन व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड व्हाट इट्स एप्लीकेशन. ठीक है. सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. ओके. थैंक यू. In the next video we are going to cover all those rest of the point of the human genome project. Thank you.